Hello students, today we will be starting with chapters the state government, and this is a very interesting chapter. You will find it very interesting. So today we will start with this chapter. So let me tell you one thing, that the government, as you all know, that the government in India, it functions at three levels: the central level, the state level, and the local level. Now, last year you must have read about the local government in India, that is the Panchayati Raj. Now let us learn something about the state government. Now what is state government? How does it functions? All these things we are going to read in this chapter, or we are going to study in this chapter. A state government functions more or less like the central government, but its functioning differs from that of a local government. Like all other democratic governments, the state government consists of three branches. First one is legislature, the second is the executive, and the third one is the judiciary. Now, what is legislature? अब हम बात करते हैं कि legislature है क्या? What it is? Legislature is a body that make laws. You know that all these three branches like legislature, executive, and judiciary. So let us talk about first legislature. Legislature is what? It is a body that makes laws. In some states, the legislature consists of two houses, that is Vidhan Sabha and Vidhan Parishad, and in most states, the legislature consists of only the Vidhan Sabha. Legislature that consists of two houses, जो दो houses consist करती है, that is known as bicameral, और जिसमें एक ही house होता है, and that consists of one house is known as what? It is known as a unicameral. Now, the executive implements the laws and the judiciary ensures that they are protected. Means legislature make the laws, executive implements the laws, and the judiciary ensures that they are protected. So we have already talked about the legislature. हमने legislature के बारे में बात करी, लेकिन अभी मैं आपको और भी समझाना चाहूंगी legislature के बारे में. जैसे हम देखते हैं ना कि just like a car needs a driver, कि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर को, जब गाड़ी चलाता है, कोई कार चलाता है ड्राइवर, तो उसको क्या चाहिए होता है? He needs a steering, उसको steer चाहिए, ठीक है? And similarly brakes he needs to prevent accidents from happening. Similarly, a government needs, we all citizens need what? We all citizens need a government to guide us. A country needs a government to guide it, and some good laws to help the government do this. Now, to make the laws, we need a body and power to make them. और ये बॉडी क्या कहलाती है हमारी? ये बॉडी हमारी कहलाती है लेजिस्लेचर. कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेचर में दो हाउसेज होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद. कुछ में एक, दैट इज नोन एज बायकैमरल, और जहां पे एक ही हाउस होता है वहां पर जो है इट इज नोन एज व्हाट? यूनिकैमरल. अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं विधान परिषद की, कि बेसिकली व्हाट इज विधान परिषद, की विधान परिषद क्या है. Now the Vidhan Parishad, it is also known as a legislative council, and it is the upper house of the assembly. ये assembly का upper house होता है, और जो tenure होता है members का विधान परिषद में, it is 6 years. In Vidhan Parishad, tenure of member is 6 years. Every 2 years, हर साल, इसमें हर 2 साल बाद, इसमें क्या होता है कि 1/3 of the members retire and fresh ones are elected. और fresh ones क्या होते हैं? Elect होते हैं इसके अंदर. Now since all the members, अब इसके अंदर सारे members एक साथ तो रिटायर होते नहीं, ठीक है ना? So they do not retire together. So that is why the Vidhan Parishad is known as what? It is known as the permanent house. So some members of Vidhan Parishad are indirectly elected by the members of the legislative assembly. Some are elected by the local bodies, and some are elected by the high school teachers or graduates, etc. Some members are nominated by the governor. कुछ members governor nominate करता है from among the people who are distinguished themselves in different fields, जो अलग अलग field से relate करते हैं. जैसे कोई literature से relate करता है, कोई social work से relate करता है, like this. So this is what? This is विधान परिषद. तो ये हमारा क्या कहलाता है? विधान परिषद. ठीक है. अब हम आगे बात करते हैं विधानसभा की. Vidhan Sabha is known as what? It is the lower house of the assembly, and it consists of what? It consists of the elected representatives of the people, जो लोग elect करते हैं, ठीक है? So they, the members in this Vidhan Sabha, they are directly elected by the people. We people elect them.
So they are elected directly by the people and are known as what? They are known as the MLAs. उनको हम MLAs कहते हैं. And MLAs is elected from a constituency. MLAs कहाँ से elect होते हैं? Constituencies से. So all the states do not have the same number of MLAs. ये हर state में same number of MLAs ही नहीं होते. जो number होता है वो कैसे decide होता है? The number is decided by the number of constituencies. कि कितने constituencies उस state के अंदर हैं. The number is decided by the number of constituencies in the state, which is elected by the population of the state. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं राजस्थान का. तो राजस्थान हमारा क्या है? राजस्थान is the largest state of India. किस टर्म में? In terms of area. But लेकिन ये क्या है? Sparsely populated है. Population is very less over here and has 200 sparsely populated है. So for example, but it is sparsely populated, has 200 members in its assembly. लेकिन मध्य प्रदेश जो second largest state है in terms of area, but has a larger population. लेकिन उसकी population बहुत ज़्यादा है, तो उसके कितने MLAs हैं? Has almost 230 MLAs over here. Now गोवा. अब अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा जो है बहुत smaller state है इंडिया का, उसमें से 40 MLAs ही हैं. So the constitution has set the maximum number of MLAs as 500. Constitution ने कितना सेट किया हुआ है? Maximum number of MLAs 500, लेकिन minimum 40. I think it is clear till here. यहाँ तक आपको clear हो गया होगा. Now अब हम आगे बढ़ते हैं. तो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि लाइफ ऑफ द विधानसभा की लाइफ कितनी है विधानसभा की. इसमें क्या है कि द लाइफ ऑफ द असेंबली इज नॉर्मली फॉर 5 years. नॉर्मली 5 years की लाइफ है एज सेम दैट ऑफ द लोकसभा. बट समटाइम कभी कभी लेकिन जब इमरजेंसी आती है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट तो असेंबली डिसॉल्व हो जाती है. 5 years से पहले भी डिसॉल्व हो जाती है अगर नो कॉन्फिडेंस होता है उसमें या कोई इमरजेंसी आ जाती है. तो इट कैन गेट डिसॉल्व बिफोर देन दैट एंड फ्रेश इलेक्शंस आर हेल्ड. और फिर क्या होता है? फ्रेश इलेक्शंस होते हैं. अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की. लेट अस नाउ टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशंस. Any citizen who has attained the age of 25 years, he is not holding any post of profit in the government, he is not convicted by a court with imprisonment of 2 or more years and is of a sound mind. Means बिल्कुल sound mind का होना चाहिए वो. So he can be a member of the विधानसभा. सॉरी. अब हम इसके आगे चलते हैं. हमने क्वालिफिकेशंस डिस्कस करी. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्वालिफिकेशंस. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस. नाउ लीडर ऑफ द लेजिस्लेचर. अब लीडर कौन है लेजिस्लेचर? नाउ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो इलेक्ट करते हैं स्पीकर को और डिप्यूटी स्पीकर को. किसमें से? फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स. अपने जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में से स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर दे select themselves from among themselves, and the speaker and deputy speaker they presides over the house meets. वो house meet को preside करते हैं and ensures order. और ये देखते हैं कि मतलब properly जो है जब मीटिंग होती है मीट होती है तो उसमें proper order should be over there. At times when order is not maintained, कभी कभी ऐसा होता है ना कि order maintain नहीं होता. Everyone starts speaking. सब बहुत जोर बोलना शुरू कर देते हैं. They all start speaking. They all start having conflict with each other, or they start fighting with each other over certain issues. So at times when order is not maintained, the speaker adjourns the house for a short. कुछ समय के लिए उसको रोक देता है या in extreme cases for rest of the session. अब now let's talk about the functions. There are many functions of the legislature. Legislature के बहुत सारी functions हैं, लेकिन एक main important function legislature क्या है? जैसे कि हमने शुरू में भी बात करी थी. In the beginning also I told you that legislature is concerned or is associated with making of the laws. So one of the most important function of legislatures is making laws and presenting the budget. कि law बनाना और budget को present करना. तो ये एक बहुत ही important function है. And laws are made for those subjects which comes under the state list. Laws उन subjects के लिए बनाए जाते हैं जो state list में आते हैं. Central government laws बनाती है subjects जो बहुत ही national importance के होते हैं. ठीक है? Like defense हो गया, foreign affairs हो गया, हमारा banking हो गया, railways हो गया. And the state government जो होती है वो हमारे laws किस पे बनाती है? On local importance.
जो लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स है हमारा, ठीक है, हमारा एजुकेशन है, तो उसके ऊपर बनाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट थिंग वी कम टू दैट हाउ द लॉ इज मेड, कि लॉ कैसे बनता है। ये आपने मेरे ख्याल से 6th क्लास में भी, 6th स्टैंडर्ड में भी आपने बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा कि हाउ द लॉ इज मेड। सो लेट मी टेल यू वंस अगेन दैट हाउ इन senior classes also, in 8th standard also you will study about the law making, but here I will give a brief description of how the law is made. Now first the law for law making, draft of a law is prepared, law का एक draft बनाया जाता है, then it is presented in the legislature, this is called a bill। तो जो legislature में आपने दिया, draft करा, उसको बनाया और उसको लेजिस्लेचर में आपने प्रेजेंट किया, दिस इज कॉल्ड अ बिल। अब बिल दो तरीके के होते हैं, बिल्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज ऑर्डिनरी बिल एंड द अदर वन इज मनी बिल, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल किससे डील करता है, इट डील्स विद द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि रोज डेली के जो वर्किंग हो रही है उससे रिलेटेड होता है। और मनी बिल्स जो होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द मनी मैटर्स, मींस दे डील विद द फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं वो। So members of either house can introduce an ordinary bill, कि किसी भी हाउस का मेंबर जो है ऑर्डिनरी बिल को जो है क्या कर सकता है, इंट्रोड्यूस कर सकता है। However मनी बिल्स, लेकिन जो मनी बिल्स होते हैं वो कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, दे ओरिजिनेट ओनली इन द विधानसभा, सिर्फ विधानसभा में ही वो ओरिजिनेट होते हैं। अब ड्राफ्ट बन गया, प्रेजेंट कर दिया उसको, ठीक है। नाउ फ्रॉम ए बिल टू अ लॉ, अब बिल से वो लॉ कैसे बनेगा, हाउ इट विल बिकम अ लॉ। मिनिस्टर क्या करते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर क्या करता है, ही इंट्रोड्यूसेस द बिल इन आइदर हाउस, किसी भी दोनों हाउस में से वो जो है, जो एमएलए होता है वो इंट्रोड्यूस करता है बिल इन आइदर हाउस ऑफ द असेंबली आफ्टर अ डिटेल्ड डिस्कशन। जब वो बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक डिटेल्ड डिस्कशन होता है उसके ऊपर। आफ्टर अ डिटेल्ड डिस्कशन द बिल इज पुट टू वोट इन द हाउस, तो बिल को जो है वोट के लिए हाउस में दिया जाता है। फ्रॉम हेयर इट गोज टू अदर हाउस फॉर अप्रूवल, यहाँ से वो दूसरे हाउस में जाता है अप्रूवल के लिए। देन इट इज सेंट टू द गवर्नर, फिर वो गवर्नर के पास जाता है। जब गवर्नर उस पर साइन कर देता है, व्हेन द गवर्नर साइंस द बिल देन इट बिकम्स अ लॉ, ठीक है। When the governor signs the bill, it becomes a law. A governor के पास कोई पावर नहीं होती उसको रिजेक्ट करने के लिए, he can only give the suggestions। वो हाउस में भेज सकते हैं उसको, जहां जिस हाउस से वो ओरिजिनेट हुआ है, जो हाउस उसका ओरिजिन का हाउस है, उस हाउस में वो उसको सजेशंस के लिए भेज सकता है, कौन, गवर्नर। लेकिन वो उसको जो है रिजेक्ट नहीं कर सकता, गवर्नर कैन नॉट रिजेक्ट द बिल, हाउएवर ही कैन send it back to the house of its origin with suggestions for change। अब नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें अगर हम आगे बात करें तो इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा द एग्जीक्यूटिव। जैसे मैंने आपसे बात की थी ना, देयर आर 3 ब्रांचेस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर इज कंसर्न विद व्हाट, मैंने आपको क्या बताया था कि लेजिस्लेचर किससे कंसर्न है, मेकिंग ऑफ द लॉज। और एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट का मतलब इम्प्लीमेंट करना, टू इम्प्लीमेंट। तो एग्जीक्यूटिव क्या हुआ, यहाँ पर द स्टेट एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करते हैं, जो इम्प्लीमेंट करते हैं, दे आर द एग्जीक्यूटिव्स। नाउ स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब हम गवर्नर के बारे में बात करते हैं, गवर्नर होता कौन है, हु इज अ गवर्नर। सो गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, कहाँ का, स्टेट का। जो एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो किसके नाम पे चलता है, रन्स इन हिज और हर नेम। हु अपॉइंट्स द गवर्नर, अब गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट इसको करता है अपॉइंट, लेकिन किसकी एडवाइस में, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। गवर्नर का जो टर्म होता है नॉर्मली 5 years के लिए होता है। However, the president has the power to remove the person before his or her tenure gets over। कि जो हमारा जो प्रेसिडेंट होता है उसको ये पावर होती है कि वो उसको उससे पहले भी जो है वो क्या कर सकता है, उसको हटा सकता है, रिमूव कर सकता है। सो गवर्नर ऑल्सो बी रीअपॉइंटेड फॉर अनदर टर्म। ऐसा नहीं कि हट गया तो फिर दोबारा से रीअपॉइंट नहीं होगा, ही कैन बी रीअपॉइंटेड, वो दोबारा से रीअपॉइंट हो सकता है, ठीक है। Qualifications, must be a citizen of India,
should have completed 35 years of age, should have not convicted in a court of law and should be of sound mind. ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स नॉर्मली सभी जगह एप्लीकेबल होती है. अब हम आगे बात करते हैं इसके बाद. जो जुडिशियल पावर होती है गवर्नर की, नाउ पावर्स ऑफ गवर्नर के बारे में बात करते हैं. द जुडिशियल पावर्स ऑफ द गवर्नर इंक्लूड्स रिड्यूसिंग जुडिशियल पनिशमेंट्स. जितने भी जुडिशियल पनिशमेंट्स होते हैं उनको जो है गवर्नर कम कर सकता है. गवर्नर हैज डिस्क्रिशनरी पावर्स. डिस्क्रिशन वर्ड मींस उसके विल. So the governor has discretionary powers like recommending president's rule in the state कि वो स्टेट में president rule applicable कर सकता है गवर्नर. ठीक है, president rule कब impose होता है? In a state when no political party, जब किसी भी political party की कोई majority support नहीं होती है ना, तो असेंबली के अंदर या रूलिंग पार्टी डिसमिस हो जाती है फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर मिसमैनेजिंग द स्टेट, कि मिसमैनेज करा स्टेट को उसने, तो वो जो है रूलिंग पार्टी डिसमिस हो जाती है. तो एट दैट टाइम प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी एप्लीकेबल. तो वहां प्रेसिडेंट रूल लग जाता है. इफ द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन द स्टेट, अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो जाता है, लग जाता है, ठीक है, स्टेट के अंदर, तो इट इज द गवर्नर. तो ये गवर्नर होता है जो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर स्टेट को रन करता है. ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ. जुडिशियल पावर इंक्लूड्स रिड्यूसिंग ऑल दीज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द चीफ मिनिस्टर. अब हम चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं कि हु इज द चीफ मिनिस्टर. नाउ द लीडर ऑफ द पार्टी विच हैज द मेजॉरिटी इन द असेंबली. जो पार्टी की मेजॉरिटी होती है असेंबली में, उस पार्टी का जो लीडर होता है, ही इज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर. और उसको अपॉइंट कौन करता है? ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. चीफ मिनिस्टर इज देन इनवाइटेड बाय द गवर्नर टू फॉर्म द न्यू मिनिस्ट्री. ठीक है, नाउ द चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट्स द मिनिस्टर्स. जो उसके कलीग्स होते हैं लेजिस्लेचर में से, उसमें उनमें से वो अपने मिनिस्टर सेलेक्ट करता है. And these ministers form the council of ministers or the state cabinet. और ये ministers क्या form करते हैं? ये ministers form करते हैं council of ministers या state cabinet. council of ministers. अब council of ministers क्या है? अब आप ये पूछेंगे कि मैम what is council of ministers? So council of ministers is the executive body of the state. ये क्या है council of ministers? ये state की executive body है. ठीक है, and it carries out the day-to-day administration of the state. कि जो state के daily के administration system होता है उसको carry out करते हैं. It advises the governor also on the important issues and take all the policy decisions. जो policy decisions होते हैं वो भी ये लेते हैं. They are also answerable to the legislative houses and they remains in the office as long as it has majority. जब तक majority support मिलती है उनको assembly में, तब तक वो office को होल्ड करते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस मूव फर्दर. अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें. चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं? अब चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज क्या है? चीफ मिनिस्टर एलोकेट करते हैं क्या? पोर्टफोलियोज और डिपार्टमेंट. जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको उनकी ड्यूटीज एलोकेट करते हैं कि क्या उनका व्हाट दे हैव टू डू एंड और डिपार्टमेंट्स टू द मिनिस्टर्स. सीनियर मिनिस्टर्स आर गिवन. जो जितने भी सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं उनको इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज मिलते हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्ट्री. ठीक है, एंड द सीनियर मिनिस्टर्स फॉर्म द कैबिनेट. जितने भी सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं वो कैबिनेट फॉर्म करते हैं. दीज all the important decisions regarding the running of the government, कि गवर्नमेंट को रन करने के लिए जितने भी important decisions होते हैं वो कौन देता है? वो सारे के सारे decisions they are taken by the chief minister and the cabinet ministers. ठीक है, अब हम बात करते हैं जुडिशरी की. आप इस पिक्चर में देखिए, सी इन दिस स्लाइड. जुडिशरी क्या है? थर्ड ब्रांच ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट है. पहली ब्रांच कौन सी थी? लेजिस्लेचर. दूसरी ब्रांच कौन सी थी? एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेचर का वर्क क्या है? टू मेक द लॉज. एग्जीक्यूटिव का टू इम्प्लीमेंट दोज लॉज. एंड जुडिशरी इज द थर्ड ब्रांच ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. सो जुडिशरी एट द स्टेट लेवल कंसिस्ट ऑफ व्हाट? हाई कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स like district and session courts, the provincial courts and the Nyaya Panchayats. Now the High Court stands at the head of the judiciary at the state level and it is headed by whom? कौन उसको head करता है? By Chief Justice and has as many judges as the President of India considers necessary.
ठीक है, उतने जजेस होते हैं उसमें जितना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर करता है कि जरूरी है। नाउ हाई कोर्ट कैन इशू, अब हाई कोर्ट क्या क्या कर सकता है? हाई कोर्ट जो है इशू कर सकता है ऑर्डर्स, हाई कोर्ट कैन इशू ऑर्डर्स, ठीक है, and it can writs, orders, then it can protect the fundamental rights of the citizens of the state. It also has the power over all the subordinates vote in the state. So this is about the state government. This is all we read about the state government. हमने ये सारी चीजें किसके बारे में पढ़ी? State government के बारे में. And students, if you face any problem, you can ask me on WhatsApp. आप मुझसे WhatsApp पे पूछ सकते हैं. You can make a call to me. आप मेरे से call पे पूछ सकते हैं. ठीक है? You can ask on in the class when our classes takes place in MS Teams. So thank you for all this. Thank you for listening. And I think you must have understood whatever I taught you in this lecture. Thank you everyone.